Hello and welcome friends. Quiz time presented by Jha sir, that is me, 26th August 2023. Friends, यहाँ पे आपको 10 बहुत ही important questions of the last week mainly जो वीक चला गया है, you will get current affairs question that is very need to know important questions. And friends, you will get all the question from 1 to 10 first. I will not discuss the answer then, so you be ready with your pen and paper. And after finishing the 10th question, we will discuss serially, that is from 1 to up to 10th question, the answers, and I will give you my inputs. So friends, these are very need to know selected questions by a team and of experts, which will be surely coming in your current affairs exam. So friends, now you will get the questions, and so be ready with your pen and paper. The first question for this day today comes in your screen. The question is, the 15th summit of the BRICS group is being held under the chairmanship of which country? And your options are A, Brazil, B, India, C, China, D, South Africa. Question number 2. Who has become the second Indian to reach the final of Chess World Cup? A. Krishnan Sashikaran, B. Nihal Sarin, C. R. Pragananda, D. Pentala Hari Krishna. So these are the options. We move to the question number 3. Where was the 20th Asian India Economic Ministers meeting held? And your options are A. Malaysia, B. India, C. Indonesia, D. Thailand. Question number 4. Who was honored with the first Udyog Ratna Award instituted by the government of Maharashtra? And your options are A. Ratan Tata, B. Mukesh Ambani, C. Gautam Adani, D. Adar Poonawalla. We move to the question number 5. Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of South Indian Bank? And your options are A. Anup Poonawalla, B. Ajay Sinha, C. Ramesh Puri, D. P.R. Seshadri. We move to the question number 6. Which country has won the FIFA Women's World Cup 2023 title? And your options are A. Argentina, B. Brazil, C. England, D. Spain. Question number 7. In which research institute the new variety of lotus flower Namo 108 has been developed? And your options are A. National Botanical Research Institute, Lucknow, B. FSSAI, C. National Botanical Research Institute, Howrah, D. None of these. Question number 8. India's first 3D printed post office building has been inaugurated in which city? And your options are A. Bangalore, B. New Delhi, C. Mumbai, D. Kolkata. Question number 9. Which portal has been launched by Reserve Bank of India to track unclaimed deposits deposited in banks? And your options are A. Udgam portal, B. Sahaj portal, C. Madad portal, D. Vishwas portal. We move to the question number 10th, which will be the last question. Recently, scientists of which Institute of India have discovered a new star? And your options are A. Indian Institute of Astrophysics, B. CDAC, C. Indian Astrology Research Center, and D is none of these. Friends, now put a hand over here and then we are moving to the answer sections, जिसमें मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताऊंगा. Questions were told surely in English for a purpose, but आप जो है will be using both the language. First question was this, ये था पहला question. The 15th summit of the BRIC groups is being held under the chairmanship of which country? And you know ये अभी BRIC summit अभी just 22 to 24th अगस्त को हुआ था. 22 24th अगस्त को हो चुका है. Answer is South Africa. D is the correct answer. And if you remember 23rd को चंद्रयान का लैंडिंग था. उस समय में अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस्ड द नेशन फ्रॉम ब्रिक्स मीटिंग से ही उन्होंने एड्रेस किया था. ये पढ़ भी लेते हैं इनपुट. द 15th समिट ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स. ये क्या है? ब्रिक्स. कौन कौन से हैं? सी दिस कैन बी आल्सो ए क्वेश्चन, इसलिए देखिए क्या कौन कौन से कंट्री हैं. मेनली ब्राजील, इमर्जिंग इकोनॉमीज, रशिया, इंडिया, चाइना एंड
साउथ अफ्रीका इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? तो सिटी देखिए कौन सा था, इट वाज जोहान्सबर्ग। Country was South Africa, city was this. From August 22 to 24, as I told you, 23rd को ये हुआ था चंद्रयान का, ठीक है। तब मोदी साहब ने वहीं से एड्रेस किया था। We move to the question number 2. Who has become the second Indian to reach the final of the chess World Cup? ये क्वेश्चन में ये हम लोग के लिए एक बहुत अच्छी भी बात है कि हमारे जो ये ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रगनंदा जी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये किसके साथ खेला? इन्होंने खेला मैग्नस कार्लसन, और मैग्नस कार्लसन इज द नंबर वन वर्ल्ड। मैग्नस कार्लसन, ठीक है, ये चेस के, आई एम सॉरी, मैग्नस कार्लसन इज द नंबर वन। और इन्होंने, प्रगनंदा ने ही डिफीटेड नंबर टू है जो चेस में, निकारू नाकामुरा एंड फैबियोनो कार्लियोनो, ऐसे कुछ नाम है। उन दोनों को 2 और 3 को हरा के ये नंबर वन सीड दैट इज मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट इन्होंने खेला। ही कुड नॉट विन, बट टाई ब्रेकर में लेके गए, तो इट इज ए बिग अचीवमेंट। नाउ ये पढ़ लेते हैं इनपुट। 18-year-old Indian chess player R. Pragnanda has become the second Indian after विश्वनाथ आनंद। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, आफ्टर विच प्लेयर? तो विश्वनाथ आनंद जी हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। टू रीच द फाइनल ऑफ द चेस वर्ल्ड कप, आर प्रगनंदा डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 3 ग्रैंड मास्टर, जो मैंने बोला था, फैबियानो करुणा एंड हिकारू नाकामुरा या कुछ इस तरह का नाम है, वो नंबर 2 के प्लेयर हैं, उनको हराया था। और किसके साथ फाइनल हुआ था? मैग्नस कार्लसन के साथ। तो दिस 3 इनपुट्स फ्रॉम द वर्ल्ड चेस एंड स्पोर्ट्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हु वन? मैग्नस कार्लसन ऑब्वियसली वन, एंड आर प्रगनंदा वाज द रनर्स अप। वेयर वाज द 20th इंडियन एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? तो इसका आंसर इज इंडोनेशिया, सी इज द करेक्ट आंसर। India participated in the 20th Asian India Economic Ministers meeting in सेमरंग। सेमरंग जो है प्लेस का नाम है। दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर, इंडोनेशिया। राजेश अग्रवाल एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया। तो कहां हुआ था? इंडोनेशिया, सिटी वाज सेमरंग। एंड ये दोनों चीज आप याद कर लें, कौन सा? 20th एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग। who was honored with the first उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र? ठीक है, तो ये आंसर जो है, दिस इज आवर ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा इज द करेक्ट आंसर। Renowned industrialist Ratan Tata was honored with the first उद्योग रत्न अवार्ड instituted by the government of Maharashtra। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, उद्योग रत्न अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ठीक है, तो यू हैव टू से इट इज महाराष्ट्र। Question number 5. Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of South Indian Bank? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, PR शेषाद्री इज द करेक्ट आंसर। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में, यू आर फॉलोइंग परीक्षा सारथी मैगजीन का जो इंस्टाग्राम पेज है, सो यू विल सी दिस का, इसको फोटोग्राफ के साथ डाला गया था। सो उस मैगजीन का, सॉरी, उस मैगजीन का जो इंस्टाग्राम लिंक पेज है, आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो जरूर आप फॉलो कर लें। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट मैगजीन, एंड इट इज वेरी गुड मैगजीन, नीड टू नो इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसमें ये फोटो के साथ भी लगा हुआ है। The Reserve Bank of India has approved the appointment of PR Seshadri as Managing Director and Chief Executive Officer of Kerala based। कहाँ का बेस्ड है ये भी देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर बैंकिंग एक्सपीरियंस। साउथ इंडियन बैंक इज केरला बेस्ड, साउथ इंडियन बैंक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। विच कंट्री हैज वन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? सो ये किसका है? दिस इज वुमेन का है, एंड फीफा वर्ल्ड कप 2023 वाज वन बाय वुमेन्स का स्पेन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्पेन बहुत ही स्पोर्टिंग नेशन है, वहां से रफा नडाल या रफेल नडाल जो बोलते हैं, कार्लोस अल्कराज, इस तरह के टेनिस प्लेयर आते हैं। उनका फुटबॉल भी बहुत पुराना हिस्ट्री है। और उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने इंग्लैंड को भी। ठीक है, दैट इज यूनाइटेड किंगडम।
Spain has won the title of FIFA Women's World Cup 2023 final. In the final, women's team Spain registered a historic victory by defeating England, United Kingdom 1-0 से. ठीक है. Question number 7. In which research institute the new variety of lotus flower Namo 108 has been developed? So your answer, correct answer is the option A here. कौन सा है ये? This is National Botanical Research Institute लखनऊ. यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह किसने इनको ओपन किया था या अनवेल किया था? Unveiled a new variety of lotus flower with 108 petals. ठीक है, नमो 108. एंड नमो 108 कहाँ, कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. बॉटनी, यू नो, इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स. तो उनका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है दैट इज इन लखनऊ. ये भी हो सकता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड वेयर, देन द आंसर इज LUCA. Lucknow will be the correct answer. So one question तो है, but it is giving you at least 2 or 3 questions more to prepare. Who unveiled the this Namo 108? So इसमें आंसर होगा टेक्नोलॉजी यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनवेल्ड ए न्यू वेराइटी ऑफ लोटस. ओके, सो अनवेल्ड किसने किया? तो जितेंद्र सिंह ने. नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज द इंस्टीट्यूट विच हैज developed this lotus flower, and where it is located? It is located in Lucknow. So 3 questions from 1 question. India's first 3D printed post office building has been inaugurated in which city? And your answer is 3D printed post office first is inaugurated in Bangalore. इस बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड आईटी अश्विनी वैष्णव जी, ये है. इनका आप मिनिस्ट्री भी याद रख लीजिए. यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मेनली रेलवेज. आपको भी याद होगा दिस रेल एक्सीडेंट के समय इनका नाम बहुत आया था. रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड आईटी. अश्विनी वैष्णव जी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन बेंगलुरु. सी, वी कैन नेवर इमेजिन दैट रेलवे के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने किया था, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन को इस तरह से भी याद रखना है. हु अनवेल्ड दिस फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग inaugurated in Bangalore? So it was Union Minister of Railways, Communication and IT, Ashwini Vaishnav is the correct answer. Which portal has been launched by Reserve Bank of India to track unclaimed deposits deposited in banks? पहले देखिए, ये तो मैंने पूरा कवर किया है, वन सेपरेट वीडियो. इफ यू विल सी माय चैनल यू विल गेट दिस. पहले इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर इज द ऑप्शन ए, दैट इज उद्गम पोर्टल. मैंने ये बहुत अच्छे से कवर किया है, 4-5 मिनट्स का वीडियो है. यू नीड टू सी दैट वीडियो. उद्गम पोर्टल क्या होता है? अनक्लेम डिपॉजिट जो है आरबीआई का, मैं जस्ट नक्शल में आपको बता देता हूं. फॉर 10 years उस कोई भी अकाउंट में अगर कोई मतलब उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, नाइदर डिपॉजिट नाइदर पेमेंट्स, सो इट बिकम्स ए अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट, डोरमेंट टाइप का हो जाता है. तो उसको क्या होता है कि जो बाद में नेशनलाइज्ड बैंक्स दे हैव टू डिपॉजिट दैट मनी विद द आरबीआई. सो पीपल का मनी इट गोज टू आरबीआई. तो इन दैट वे अभी क्या है, उद्गम डिपॉजिट्स, उद्गम जो ये पोर्टल बनाया आरबीआई ने, सपोज यू आर हैविंग मल्टीपल अकाउंट्स, मीन्स आपका 6-7 बैंकों में है, सो इट विल बी शोन एट वन पर्टिकुलर प्लेस एंड यू कैन इजिली ट्रैक एंड reclaim it. Okay, move to the last question. Recently scientists of which institute of India have discovered a new star? और इसका करेक्ट आंसर इज ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स. ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, एंड इसमें पढ़ लेते हैं इसके बारे में. साइंटिस्ट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, IIA इन बेंगलोर. कहां पे IIA लोकेटेड है? सो नाउ यू गेट योर आंसर. बेंगलोर में लोकेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स. IIA stands for Indian Institute of Astrophysics, which is located in Bangalore, have discovered a new star. Scientists have named this star HE1005. What is the name of the new star? So this is question number 2. This is question number 1. This is already a question. So you are getting 3 questions from 1 question here also. The name of the new star is HE1005143.
ठीक है फ्रेंड्स. So this was from the quiz of today. Very important questions. Thanks to the team of परीक्षा सारथी. जैसा कि मैंने बोला इसका इनका इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए. यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड दे हैव ए बाई मंथली मैगजीन इन विच यू विल गेट. ये तो मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है बट हो सकता है कि अदर क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट. सो टू परचेज दैट मैगजीन you need to WhatsApp at this given number 9950239676. And for the complete preparation of SSC and mainly so of the current affairs, you please subscribe to our channel SSC Jha Classes. So friends, thank you and good luck. We meet in the next quiz section.